السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سورت نمبر 16، سورہ نحل، آیا نمبر 64 ہے کیا؟ 3 ہو کر ہے 63 ہو کر ہو ہے گیا 64 63 ہو گیا، ہاں 63 میں کیا تھا؟ اللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان۔ اس میں کیا ہے، وہ جو پہلے کا وہ کلچر تھا، وہ کلچر کے اوپر ان کو بہت ناز تھا، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس آیت میں، کہ وہاں پر یہ اپنی کلچر، اپنی زبان دانی اور اپنا وہ جو آبا و اجداد کا وہ جو اثاثہ تھا اس پر بڑا سینے سے لگائے ہوئے تھے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب آئیں تو انہوں کیا بولتے تھے، یہ جو ہمارے آبا و اجداد کا اتنے ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ کیا بس ہے کیا، یہ کیا بیکار ہے کیا؟ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، ایسے ایسے ان کے معبوداں، اتنے بتوں کی پرستش، یہ سب کیا بیکار ہے کیا؟ یہ اب وہ سب کیا جہنم میں چلے گئے کیا؟ تو اپنے کلچر سے، اپنے عقیدوں سے، اپنے یہ باطل یہ جو چیزاں ہیں ان سب سے ان کو اتنا لگاؤ تھا کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس کو مزین کس نے کیا تھا؟ فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب الیم۔ وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر، لقد ارسلنا، اللہ اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، ہم نے بھیجے پیغمبروں کو، ہم نے خدا کی قسم، ہم نے پیغمبروں کو بھیجے اور ان کی تعلیمات بھی چل رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے کلچر کو، اپنی عقائد کو، اپنے غلط چیزوں کو، غلط کلچر کو جو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کی تعلیمات کی طرف نہیں آ رہے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی پہلے بھی پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے، پہلے نسلوں میں بھی بھیجا ہے، پہلے اقوام میں بھی بھیجا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے، یہی روش ان کی بھی رہی ہے۔ تو آپ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام آپ کر دینا ہے، بس آپ کو پہنچا دینے کا کام ہے، آپ اتنا ہی کیجیے۔ یہ لوگوں کا ایسا ہی ہے، شروع سے بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو اپنا کلچر بہت زیادہ عزیز دکھتا ہے، جو غلط ہے، غلط عقائد، غلط کلچر، باطل عقیدے ان کے، ان سب وہ ٹکے ہوئے ہیں، وہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کو مزین کس نے کیا ہے؟ شیطان نے۔ شیطان ان کو بھڑکاتا ہے کہ یہ جو کر رہی نا تم، یہ جو مزاروں پر جاتی، یہ جو محفلیں سجاتی، فاتحہ کی، درود کی، نعت کی، قوالی کی، یہ جو بھی رات بھر کرتی، بڑے برت جگہ ہوتی ان لوگوں کے، وہی اگر عبادت میں گزارے، یہ جو عشرہ ہے، عبادتوں کا عشرہ ہے، وہ نہیں کرتے، یہ دوسرے چیزوں میں نا شور و غل مچانا، یہ دوسروں کے یہ جو تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا، اوہام پرستی، بلائنڈ بلیفس ان لوگوں کے، یہی عقائد سبھی یہاں بھی ہے۔ یہ نکالنے کے لیے ان لوگوں کے پاس بھی بہت عقائد تھے، کبوتر اڑاتے، وہ رائٹ سائڈ اڑا تو سمجھتے تھے کہ اچھا شگن ہے، جا سکتے، سفر کو جا سکتے یا کوئی کام کر سکتے، لیفٹ سائڈ اڑ گیا تو روک دیتے، پوسٹ پون کر دیتے، نہیں بھائی وقت ٹھیک نہیں ہے، یہ جو راہو کالا، یہ کالا، وہ جو دیکھتے نا، وہی ہے، پرانا ہی یہ ہے، ان لوگوں کا ہی ہے۔ تو اس سے زیادہ خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ شیطان نے بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام کرتے جاؤ، بس جو لانا ہے وہ ایمان لائے گا اور وہ عقائد اس کے صحیح کر لے گا،
जो नहीं लाना है वो अपने ही कल्चर से उसको ही सही समझकर, अभी भी ऐसा ही है। अपना ये अपनी सकाफत, अपने अकायद, हाँ, हमारे ये सभी पहले से करते हैं, बोलती नहीं, अब आपको बुलाती फातिहा दरूद इसे सब बुलाती, हमारे ऑफिस में भी होता था। बहुत से थे जो पूरियां की फातिहा करते थे, बुलाते थे। बहुत से जाते थे ये समझ कर जाते कि क्या है फूड, इट इज अ फूड, रिस्क, रिस्क खाने में क्या है क्या वैसे जा सकते क्या, जाने भी नहीं नहीं, जाते तो बढ़ावा नहीं दे सकता है, हाँ एनकरेजिंग। अब एनकरेज वो करे। आपको रोकने के बजाय आप उसमें शिरकत करे तो क्या होता है, एनकरेज करे जैसा होता है। नहीं, अभी भी है ये, पुराने जमाने से हमारे बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है, तो हमें भी करना। और ये खुशनुमा कर को दिखाता है सो शैतान। हाँ ये शैतान। तो अच्छा है इसमें, इनको एक मजा मिलता है, एक लुत्फ आता है, एक टाइम पास इनका। और वैरायटी डिशेस वो क्या क्या बनाती, उसके खाना। साथ ही दूसरों को भी बुलाती है, खाने पकाने के ही है। वो पूरियां बनाती, वो कुछ बनाती, उसे दूसरी जगह रखती, वो सब में दस्तरखान नहीं बिछाते, एक अलग ही जगह रखती है उसके वो लिए। खाना खाए के बाद वो दस्तर पर हम्म। हदिया रखवाना, ओहो वो हदिया वो तो फिर कुछ हुंडी अलग। में डालती, उन्होंने चिपके ऐसा नहीं खिलाते, वो हदिया रखवाना। हम्म। वो शायद हम्म। नेक्स्ट टाइम के वास्ते यूज कर लेता रहेगा। और उसके बाद वो कुछ कहानी भी है, वो कहानी भी पढ़ती। वो बीबी तो सेकेट की ये सब कहानी क्या चलता है, है। बीबी। मैं ही बीबी सेकेट के तो क्या कुछ अलग ही समझ गई थी, वो देखी तो बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ऐसी बयान वो। हाँ हाँ अच्छा। बीबी सेकेट के तो ये नहीं, वो रोजा रखो वो कहानी पढ़ती ना, वो हम्म बीबी क्या देखो कैसा है ना। हम्म उसके बाद में ये छठी करती ना, बच्चा पैदा हम्म हुआ तो छठी को भी क्या करती है, रात को बच्चे के पास, जब जिस दिन रात रहती है वो सुबह को छठी रहती है, छठी का हम्म तो 12 दिन को पैसे अंका हम्म गट्टा रखती है बच्चे के पास, हम्म बंडल बंडल्स कहता है तुम्हारे पास, वो रख को क्या करती, वो कई को रखती इसका तो छठी माँ आती है तो क्या मालूम, मैं छठी माँ का तो क्या की समझ गई थी। छठी माँ हम्म ही हमारे पास बच्चे को पानी नहलाने आता था, आते थे मारूस को। जब वो हम्म पूछती क्या माँ वो छठी का तो करते नहीं क्या तुम्हें, कि नहीं माँ का तो यो करना माँ, पैसे रखो माँ सब, क्या वो छठी माँ का तो बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला आती इसके ते अल्लाह अल्लाह। माँ हम्म आगे ऐसा होगा, दिल्ली हम्म बैठ गया मेरा, कितनी हम्म, बड़ी इनके, अब इनको समझा नहीं सकते हमें, जो हाँ काम ये करने बोल में रहे हैं ना, ना, वाह शैतान इसे बहुत खुशनुमा बना को पेश करता है बल्कि। जो एक तो ज़य्यना पैसे लहुम रखती है, शैतान। बच्चे को दौलत आने के वास्ते कहते वो पैसे रखती ओहो सो हो, वो, हाँ नाउजुबिल्लाह के वो छठी माँ करा बीबी फातिमा सुनकर तो दिल्ली बैठ गया मेरा। मैं छठी का तो हम्म क्या की समझी थी, 12 दिन को पानी नहलाती है ऐसा, हम्म। नहीं कहते छठी का ऐसा तो कहते। छठवां दिन होना चाहिए था, वो डबल कई हाँ को कर लिया नहीं मालूम, प्लस कर लिया। हाँ, छठी का तो छठवां छठवां दिन होना चाहिए था। वो डबल क्या कर दिए वो सब, गलत वो भी अकीदा डबल है। हाँ वो पैसे भी। इससे आ गया होगा, वो सातवें दिन जो अकीका करना है ना, जी जी जी, उसे क्या की बना ली सो वो। और उल्टा सीधा कर को क्या तो भी उसे ये कर लिए होंगे। तो इनको हम्म ये सब करने वाला कौन बोले तो शैतान है। हम एक तो हमारा नफ्स है हमारे साथ लगा हम्म हुआ, और दूसरा क्या है, शैतान। उसे है ना बहुत ज्यादा मुज़य्यन कर को, हाँ तुम्हारा कल्चर बहुत अच्छा है, देखो कितना खुशनुमा है, क्या क्या है, दुनिया के साथ चल रहे हो तुम, ये लोग देखो दुनिया से हटे हुए कटे हुए किनारा कश, अपने ही इसमें मस्त हैं, रोजा नमाज इसमें है, ये जिंदगी कोई खुशनुमा नहीं है। थोड़ा अदर ये दिखती है ना, अदर तरीका अलग दिखता है। वो है ना क्या है, वो खुशनुमा दिखता है, ढोल बाजे संदल उर्स कव्वाली नात, इसमें सब क्या है, टाइम पास। एक टाइम पास, एक दिल लगी का सामान है, वक्त गुजारी तजिया वक़्त। और वो अच्छा भी दिखता है उनको, जैसा ये लोग करते हैं। मंदिरों को जा जा को क्या क्या करती है ना, बड़े बड़े ये निकालती हैं, प्रोसेशंस निकालती हैं, गाड़ियां ये ट्रैफिक रोक लेती हैं, ये क्या क्या करती है ना, ये जो अब आता है ना, वो जो जाकर पानी में डुबाती है उसका ये हर जगह वो बिठाती हमेशा है, हर हमेशा जगह रोज का तमाशा रहता है। 8 दिन 10 दिन, कोई 3 दिन करता है, कोई 5 दिन करता है, ऐसा जो भी चलता है, ये सब भी कौन कर रहा है ये, खुद तो कर रही हूँ ना, अपने अकायद पुराने बाप दादे से लेकर आप फॉलो कर रही, लेकिन उसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला, ज्यादा उसे खुशनुमा करने वाला, बहुत इनको लुभे जैसा दिखाने वाला कौन है, ये है शैतान लगा हुआ है। ये शैतान है ना, ज्यादा भटकाता है इंसान को, बहुत ज्यादा भटकाता है।
हर चीज के वास्ते औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी है, सूरह बकरा है भगाने के वास्ते, और कुछ भी दूसरा नहीं करना। वो अमलियात वो जो करती है उसे पकड़ को रखती हैं, बन को रखती हैं, वो क्या बोलती हैं, वो कुछ बनती, वो घड़ी वो कुछ करती हैं। हमारे घर में भी था, नीचे कोई आए थे मुसलमान, ही मुस्लिम फैमिली, सामने लगा कर थे, वो घड़ी में कुछ करती है, वो घड़ी है ना घर के एंट्रेंस में लगा देती है, छत को लगाए हुए। वो हमारे वो पेंटर्स वगैरह निकाल दिए उन्होंने, लेकिन मैं देखी थी, वो था वो, जब उन्होंने निकले घर पे जाकर देखे तो वो घड़ी थी। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना, इससे क्या होता है बोले तो, हाँ ये जिन्नात है, अल्लाह पैदा करे, वो भी मखलूक है, हमारे पहले पैदा हुई मखलूक है वो, उनकी जगह उन्होंने है, हमारे साथ भी पैदा हो रहा है, एक हम साथ हमारे साथ भी पैदा हो रहा है, तो हमारे साथ भी लगा हुआ है, लेकिन वो सब भी बेजरर, उन्होंने हार्मलेस, उन्होंने कुछ भी नहीं करते, उनको छेड़खानी नहीं करना, ये छेड़खानी है, किसे करेक्ट। बनना, उनको क्या की करना, ये सब भी नहीं करना। अल्लाह दिया है ना, औजुबिल्ला बिस्मिल्लाह बोलिया, कपड़े बदलते वक्त ये पढ़ो बोलिया, टॉयलेट को जाते वक्त वो पढ़ो बोलिया, सोने के वक्त है ना वो आयतल कुर्सी है, और वो आमन रसूल है 285 286 आया है, और उसके साथ अगर ज्यादा कुछ है तो भी क्या है, बकरा, हर तीसरे दिन बकरा, उससे तो 40 इधर उधर 40 दिन 40 घरों के पास से भी चला जाता है, ऑल दी डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से भी भाग जाता है। तो ये सब भी अल्लाह बोले है, तो दूसरे अमलियात को जाना, छेड़खानी करना, फिर उसे सिर को डाल लेना, खुद को डाल लेना, कहीं को करना, जबकि आसान तरह तरीके अल्लाह दिया है। तो ये सब भी बचाव के जरिए भी हैं, हिस्नुल मुस्लिमीन है, हिस्न बोले तो क्या, खिला, फोर्ट्रेस, यू आर इन ए सेफ फोर्ट्रेस, अगर ये सुबह के औरात हैं, शाम के औरात हैं, ये सब पढ़ लिए, और वो भी है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। ये तो जहां में दुआ आ गई है, इसमें क्या पूछ रही हमें, अल्लाह के नाम से, अल्लाह तूने जो भी खिलकत पैदा की है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, नहीं होना उसकी कोई तकलीफ, ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई, आसमानों में जमीनों में जो जो भी तकलीफ अल्लाह ने पैदा की है, जहां जहां भी जो जो भी शर के एलिमेंट्स हैं, सबसे पनाह मांगने का, वला फिस समाई वो हुवा समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, जानने वाला है, और वही हमारा वाली भी है, नासिर भी है, वही हमें बचाने वाला भी है। अल्लाह की पनाह मांगते हैं, ऐसे कई दुआएं हैं जिनसे हम पनाह मांग सकते हैं, वो भी है, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व औज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। हाँ, और अगर किसी से लोगों से पनाह मांगना है तो मैं एक आपको बहुत मौसर दुआ बताई थी, लोगों के शर से, उन्होंने कर दिए, उन्होंने क्या की कर, हाँ अल्लाहुम्मा इन्ना नज्जलुका फी नूरिहिम, वो व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, बहुत प्यारी दुआ है ये, और बहुत इतनी जबरदस्त दुआ। जबरदस्त दुआ है, इसका मतलब बड़ा समझने की बात है। अल्लाह को कह रहे हैं कि हम बेबस हैं अल्लाह, हमारे कुदरत में नहीं है कि हमें उसका मुकाबला करें, उनके जो जो भी अमलियात हैं, या जो जो भी उनकी नजर बत है, या जो जो भी उनकी कारगुजारियां हैं हमारे खिलाफ, उसका सामना तेरे हवाले करते हैं, तू हमारे मुकाबले में उनके वास्ते काफी है, तू हो काफी जा हमारे वास्ते सपोर्ट इनके मुकाबले में। अब अल्लाह का सपोर्ट मांगने के बाद फिर किसी बात की हमें जरूरत नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, उनके हर कारगुजारियों से, देखने से, नजर बद से, बुराइयों से, या कोई अमलियात करती है, या जो भी करती है उससे भी हो जाता है। ये सारी चीजें कुरान बताता है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे, आपने जमीन पर बैठे हुए थे शायद, तो आपने अपनी उंगली से रेत में एक सीधी लकीर खींची और जी बताया कि ये सिराते मुस्तकीम है, इस पर चलोगे तो ये सीधा अल्लाह की मंजिल तक पहुंचा देती है, जन्नत की राह है ये, और ये अल्लाह का रास्ता है। उसके बाद आड़ी तिरछी इधर उधर भी लकीरें खींची, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी लकीरें खींच कर बताया, देखो अगर इस पगडंडी से, ये सीधी राह से इधर उधर भटक गए तो तुम्हें शैतान की राह पर चले जाती और तुम्हारा रास्ता गुम होकर कहाँ चले जाती, दोज़ख, यू विल लैंड अप दोज़ख में। तो वही है उसका खुलासा 63 आयत का। अब चलेंगे हम आया 64, वमा अंजलना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीही व हुदन व रहमतल लिकौमिन युमिनून। कुरान क्या है, हिदायत है और रहमत है, अल्लाह कह रहा है, हुदन वो रहमत,
हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है ए नबी कि तुम इन इख्तिलाफात की हकीकत इन पर खोल दो। ये जो भी इख्तिलाफात हैं, अपने अपने अकायद को, अपने कल्चर को सही बताती हैं, और आपको ये जो जुटला रही, ये गलत अकायद में जो मुब्तला हैं, उसकी हकीकत उन पर खोल दो कि ये कुछ भी नहीं है। सही बात क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये उनके सामने खोल दो। बस उसके आगे कुछ भी नहीं करना है, उनको जबरदस्ती खींच कर लाना नहीं है। वमा अलैना वमा अलैका इल्लल बलाग। अब हमें खुद को बोलना तो वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे भी उतनी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, पहुंचा देना बस। ये गलत है तो गलत बोल देना, उसके आगे उनके साथ झड़प में पड़ना या इसमें रहना, आर्ग्यूमेंट्स में रहना, उसकी जरूरत नहीं है। बस ये एक बार बता देना, बहुत बोले तो 3 बार, उससे ज्यादा तलकीन भी नहीं करना। कह रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ नबी, हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तिलाफात की हकीकत क्या है उसकी पोल खोल दो, उन्हें सही क्या है गलत क्या है उनको बता दो, जिनमें ये पड़े हुए हैं, एक जमाने दराज से पड़े हुए हैं, आबा व अजदाद का असासा समझ कर जो सीने से लगाए हुए हैं, उसकी हकीकत उन्हें बता दो। ये क्या है, कहाँ ले जाकर पटकेगा इनको, ये बता दो। ये किताब रहनुमाई है, हिदायत है और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो उसे मान लें। अब आगे की आयत में एक 65 में यहाँ क्या आया, मान लेना, युमिनून आया, उसके बाद यस्मऊन भी आता है। सुनना, समझना, मानना किसी बात को, वो समझने के ज़िमन में एक बड़ा अच्छा अल्लामा इकबाल का कलाम है, शायद अल्लामा इकबाल का ही है, मैं नेक्स्ट आयत में बयान करती हूँ आपको। ये सब ये भी समझ में आता है, आगे का भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ बताने का मकसद यह है कि अल्लाह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह फरमाया, अल्लाह ने इस किताब के नुज़ूल से उन लोगों को इस बात का बेहतरीन मौका मिला है कि ये जो अवहाम परस्ती है, ब्लाइंड बिलीफ्स, ये जो नेजा मारकर डिसाइड करते हैं कि हमें जाना है कि नहीं, ये वक्त अच्छा है कि नहीं, सारे वक्त अल्लाह के हैं, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं। आप 2 रकात नमाज हजत पढ़ के निकले, अल्लाह से दुआ करके निकले, काफी है। अल्लाह हमारे लिए वो वक्त ही अच्छा कर देता है, जो भी अल्लाह ही का है, सारा वक्त अल्लाह है, अल्लाह ही ने बनाया है। जमाना क्या है, अल्लाह कहता है जमाने को बुरा भला ना कहो, अल्लाह ही ने बनाया है, हर जमाना अल्लाह ही का है, सब अच्छा है, हर मौका अच्छा है। जो मौका मिला वो हम परस्ती, ये जो ब्लाइंड बिलीफ उनके हैं, और तकलीदी तखयलात, अपने बाप दादा के उनसे जो अकायद आ गई उसके ऊपर ये जो डटे हुए जमे हुए टिके हुए हैं, उसकी बिना पर बेशुमार मुख्तलिफ मसलकों और मजहबों में ये बढ़ गए हैं उसकी वजह से। अब ये इनमें भी बहुत से है, ये नहीं है, ये जो ये तसव्वुफ है ना, इसमें भी कई हैं। लाल कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, ये मुझे भी पता नहीं था, मेरे फ्रेंड से पता चला। ऑरेंज कलर एक फिरके का है, रेड कलर नहीं एक नहीं, फिरके का है। ये ग्रीन समझ में आता है, एवर ग्रीन कर को। ये ऑरेंज समझ में ऑरेंज नहीं की आता। को है। ओ अल्लाह वालम रख लिया हो ना पीला रख लिया है, पीला क्या पसंद आया रहेगा कलर रख लिया है क्या इसका आगे की कोई बेस भी नहीं है। खैर नहीं ग्रीन का है। बेस क्या है बोले तो हमारा मुकद्दस कलर है। वाह, हाँ, लेकिन वो इसके वास्ते नहीं, तसव्वुफ के वास्ते नहीं, झंडे वाह। बनाने के वास्ते नहीं वो। तो ये एक मसलकों ग्रीन, में हाँ अच्छा। मजहबों में ये जो बढ़ गए हैं ना, उनके बजाय सदाकत की एक बड़ी पायदार बुनियाद पाले, ये है जरूरत, वक्त की जरूरत ये थी। इस वास्ते कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, तालीमात नाजिल किए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, ताकि इनको राह हिदायत दें, इनकी रहनुमाई फरमाएं, ये अवहम परस्ती से, ब्लाइंड बिलीफ से, और ये जो अंधी तकलीद अपने आबा व अजदाद की कर रहे हैं, उससे बाहर निकाल कर इनको राह रास्त पर लाना, राह हक पर लाने के लिए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह कह रहा है, जो लोग इतने बेवकूफ हैं कि इस नेमत के आ जाने पर भी अपनी पिछली हालत ही को तरजीह देती हैं, उसी पर कायम रहने की जिद पर रहती हैं, तो वो तबाही और जिल्लत के सिवा और कोई अंजाम देखने वाले नहीं है। अब उनको छोड़ दो, अब उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। आप बता दिए उनको, रास्ता बता दिए, ये सही है ये गलत है,
बता दिया आपकी जिंदगी में पैकर रहमत बनकर, आप पैकर इस्लाम बनकर सारे खवानीन आप अपने ऊपर ढाल लिए थे। पहले किसी ने पूछा तो आपको मोबाइल कुरान बताया गया, सारी तालीमात, किसी की ये नहीं पामाली नहीं, किसी की रूगर्दानी नहीं, तो आप खुद उसका पैकर बनकर बता दिए हैं आप। बस इसके आगे कुछ भी उनको बताने की जरूरत नहीं। वो अगर तबाही पर जा रही, अपने ही अकायद पर डटे हुए ही, तो वो बुरा अंजाम देखने के वास्ते तैयार हैं, तो आपकी कोई जिम्मेदारी अब नहीं है। आप तो सीधा रास्ता वही पाएगा और वही बरकतों और रहमत से माला माल होगा जो इस किताब को मान लेगा। बात क्या है, अल्लाह ने कुरान में एक आपा हेतु बता दिया कि वरफउल अक़वामुल्लाह, वरफउल्लाहु अक़वाम, वरफउल्लाहु अक़वाम बिहाज़ल किताब, अल्लाह अक़वाम को उठाएगा, उनको बुलंदी, फजीलत, बरतरी और उनको सरफराजी उनको देगा जो इस किताब को थाम लेते हैं। इस किताब को समझकर, भाई इसका भी हक है, ये नहीं कि ऐसे ही पढ़ लिए, 10 कुरान पढ़ लिए, 20 कुरान पढ़ लिए, रमजान में कितने की पढ़ दिया, हक अदा हो गया, समझ लिए, नहीं हक अदा हुआ। ये भेजी ही गई है, ये रहमत है और ये हिदायत है। कब समझ में आता है, जब उसको समझ कर पढ़े। है किताब अरबी में, तो उससे इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। नहीं मालूम था, अरबी नहीं मालूम था, पढ़ लिया, हमें पढ़ना सीख लिए, लेकिन उसे समझने की हद तक हम नहीं जा सके, ये इग्नोरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अल्लाह नहीं एक्सेप्ट करता। अल्लाह बोलता है तुम फ्रेंच सीखे ना, जर्मन सीखे ना, दुनियादारी के वास्ते तुम क्या नहीं सीखे। ये जबान उतनी मुश्किल तो नहीं थी। अल्लाह खुद कह रहा है यस्सरनल कुरान हल मिन मुद्दकिर, हल मिन मुद्दकिर भी बोलता है, क्योंकि जाल और दाल ये इंटरचेंज होती, ये कई बार ये बसा औकात इंटरचेंज हो जाती। मुद्दकिर बोले तो भी एक हिच, मुज़्ज़किर बोले तो भी एक हिच है। जिक्र, ये जिक्र, हल में मुद्दकिर कोई है जो इसको सीखना चाहता है कुरान ये बहुत आसान है। यस्सरनल कुरान, यस्सरा बोले तो ये बाब तफील से आ रहा है, बहुत ही आसान कर दिया है, निहायत आसान कर दिया है। एक सिंपल वर्ड नहीं यूज किया, एक बाप से पास करके शिद्दत बयानी कर दिया उसमें कि ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब है कोई सीखने वाला, अल्लाह क्वेश्चन कराए, हम कहेंगे लब्बैक, हाँ अल्लाह हम सीख रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ज़हनी क़ल्बी इंशरा फरमा दे, हमें ये फहम, ये समझ बूझ अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, हमें ये समझ बूझ अता फरमा दे कि आसान हो जाए। हमें सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे लिए आसान हो जाए, सबके लिए आसान हो जाए, सब तालीमात पर आ जाए, तो ये माशरा कैसा होगा। ये माशरा और ये हमारी ये जो आजकल दिगर गो हालत है और ये जिल्लत व खाली है, सब चली जाएगी। जैसा खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुवा कब था, वो हजरत उमर का पीरियड था, हैसर किसरा कामते थे, किससे, फटे पुराने वो पेवन लगे हुए कपड़े वाले से कामते थे। कोई शाहाना ड्रेस नहीं, कोई जाओ विखार नहीं, कोई जाओ जश्न नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। कैसा कहे फलस्तीन लेने के लिए आप थामे हुए थे, नुकेल पकड़े हुए थे, ऊंट की नुकेल आप थामे हुए थे, आप पकड़े हुए थे, क्योंकि वो बारी वो खादिम की थी। ऐसा जाने वाले को भी ऊपर से देखकर पहचानिए, अच्छा ये हुलिया है जिसका बयान किया गया हमारी किताबों में, चलो नीचे उतरे और चाबी थमा दी। कोई लड़ाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, एक मुआहिदा तय हुआ था, उसमें यहूद को नहीं आने के लिए कहा गया था। यहूद आए, बेशक आए, वो आए, जियारत करें अपने प्लेसेस की, वापस चले जाए, उनको जमीन नहीं देना, उनको बसने नहीं देना, उनकी ख़यामगाह नहीं बनाना। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हुआ, खुद भुगत रहे हैं अपने ही कारगुजारियों का अंजाम, अपनी ही गलती है ये। उनको ज्यादा पैसे ऑफर करे तो उनको जमीन दे दिए, उनको बसा दिए। बसाने की ट्रीटी में नहीं था, वो ट्रीटी साइन करके दिए थे उन्होंने, जो नसरानिया बिशप्स और बिशप्स थे, उन्होंने जब की हैंड ओवर करे तो ये मुआहिदा हुआ था। हाँ, तो क्या चीज है, तो ये अंजाम अगर देखने के लिए तैयार हैं, ये रहमत और ये हिदायत नाजिल होने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो आवाज कस रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप बेफिक्र रहे, परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। आप पर सिर्फ जो काम है उतना कर दीजिए बस,
आपकी तालीमात को रोकना नहीं। यह आपको मशहूर कहती है, शायर कहती है, दीवाना कहती है, मजनू कहती है, इससे आप मायूस होकर, हौसला शिकनी होकर बैठ जाना नहीं। आपकी तालीम बरकरार रखना, कोई लाए या ना लाए, जिसके है, जिसके हक में है, अल्लाह जिसको देना चाहता है उसके राह खोल देता है, वो आ जाएगा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली देने की बात हुई है इसमें, आया नंबर 64 में।